Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Important Judgment series by Lob and Nilay Kumar, and in today's third lecture of this series, we'll be discussing Mariam Fasihuddin and another versus State by Abu Ghari Police Station and another. This is quite an important judgment when we talk about criminal law. अब क्रिमिनल लॉ में इस जजमेंट में क्या क्या डिस्कस किया गया, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. Right. The first thing that we have discussed is section 415 of IPC, then section 420 of IPC, right? Then we have discussed section 173, subsection 8 of CRPC, and we've discussed section 482 of CRPC, and we have also discussed section 468 of IPC. So these are the relevant sections that have been used in this judgment. And what I'm going to do is we are going to first discuss these relevant sections. We discuss the conceptual understanding. We get the conceptual understanding of these provisions, and then we're going to move on to the actual judgment. Right. So let's begin. This judgment is given by Supreme Court of India with a bench of two judges, Justice Suryakant, who is the author of this judgment, and Justice Dipankar Datta. And this judgment was passed on 22nd of January 2024. Now let's read section 415 IPC, which defines cheating. Whoever, by deceiving any person, first element, fraudulently or dishonestly induces the person, ठीक है, second element, to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces a person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, right? And which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation, and property is said to cheat. Explanation में दे रखा है, a dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section. So इसको आप अगर अब इसको हम एलिमेंट बाय एलिमेंट ब्रेक डाउन करते हैं. फर्स्ट देयर इज डिसीव, राइट? तो डिसीव किया जा रहा है किसी पर्सन द्वारा, राइट? डिसीव करने का क्या मतलब होता है? बेसिकली आप कोई ऐसी बातें बहकाना किसी को बोलते हैं. हिंदी में बहकाना इज अ करेक्ट वर्ड, राइट? अब आप वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कर सकते हो या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कर सकते हो. अब जब हम आईपीसी का सीरीज करेंगे उसमें मेंस रिया की बात करेंगे. मेंस रिया काफी तरीके के होते हैं. आईपीसी में मोस्टली 3 या 4 तरीके के मेंस रिया दे रखे हैं. 2 ऑफ देम आर फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्टली. ठीक है. फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है जहां पे आपका इंटेंशन है टू डिफ्रॉड समवन, किसी को धोखाधड़ी करना किसी के साथ, राइट? और डिसऑनेस्टली का मतलब होता है किसी को भी कोई लॉस या डैमेज पहुंचाना, कोई इंजरी पहुंचाना, राइट? दैट इज डिसऑनेस्टली. सो यू आर डिसीविंग एनी पर्सन either with a fraudulent intention or a dishonest intention, and you are inducing that person to, number one, either deliver the property to someone, or to consent that any person shall retain that property, or intentionally induces a person so deceived to do something or omit from doing something which he or she would not have done or omitted if he were not so deceived. मतलब ऐसे बहकावे में डाला कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ ऐसा ना करने के लिए जो वो करता या ना करता अगर वो ये डिसीव्ड नहीं होता अक्यूज से, राइट? एंड दिस एक्ट और ओमिशन मस्ट कॉज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू द पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी, राइट? ये चारों के चारों एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो इसका पार्ट है. ठीक है. तो ये चीटिंग हो गया. तो बेसिकली अगर आप मानो कि आपने किसी को, मान लो आप एक ज्वेलर हो, ठीक है, आपकी दुकान पे कस्टमर आता है. कस्टमर बोलता है ये जो अंगूठी है ये 24 कैरेट गोल्ड की है ना,
तो आप बस क्या करते हो, आप अपनी मुंडी बस हिलाते हो, ठीक है, इन अ वे कि आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, बट यू आर इन, आपका जो एक्शन था वो ऐसा था कि इट मेड द पर्सन, द कस्टमर बिलीव दैट इट इज 24 कैरेट्स गोल्ड, राइट। तो ये हो गया कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, आप कह सकते हो, बेसिकली आप चीट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यू हैव द इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन। आप और इंड्यूस कर रहे हो क्या करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नहीं करता। क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है ऑन द कंडीशन की 24 कैरेट का गोल्ड का अंगूठी है, बट वो ऐसा नहीं है। सो ही इज डूइंग समथिंग विच ही वुड नॉट हैव डन इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड, राइट। सो दिस इज चीटिंग। आई होप चीटिंग का डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू BNS, भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 318 में चीटिंग से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस जो है डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। सारे ऑफेंसेस डिस्कस कर रखे हैं चीटिंग से रिलेटेड सेक्शन 318 में। सेक्शन 318 के सबसेक्शन 1 में सेम प्रोविजन डाल रखा है जो सेक्शन 415 ऑफ IPC में डाल रखा है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 420 ऑफ IPC जो सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में डाल रखा है, ठीक है। इनमें कोई चेंजेस नहीं है, कि एग्जैक्टली सेम वर्डेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 420, जहां पे बात की जा रही है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। whoever cheats, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, चीटिंग के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाइड होने चाहिए। thereby dishonestly induces a person to receive, to deliver any property to any person. There should be delivery of property, or some making or altering or destruction of the whole or any part of a valuable security, right. This could be any gold, this could be any paper, important property papers, anything which is signed and sealed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security. यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। सच अ पर्सन शैल बी held liable under 420 and should be punished, shall be punished with such and such imprisonment, right। अब इसके एलिमेंट्स अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे चीटिंग के सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाइड होने चाहिए जो अभी हमने सेक्शन 415 ऑफ IPC में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल एलिमेंट्स हैं, एक डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या फिर मेकिंग और ऑल्टरिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, या फिर जो ऐसी कोई चीज जो साइन या सील्ड हो एंड इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसका आप कोई डिस्ट्रक्शन या उसका कोई कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है। तभी वो कहलाएगा चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे समझ, ये बस कुछ नहीं है, IPC का एक ही रूल है, एक ऑफेंस समझो, उसके सारे एलिमेंट्स समझो, और फिर जो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं उस पर अप्लाई करो, वन बाय वन देखो कि सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हो रहे हैं देन दैट पर्सन इज लायबल अंडर सच एंड सच प्रोविजन। ऐसा ही आपको लॉ स्कूल के एग्जाम्स में भी करना होता है, जुडिशियरी के एग्जाम्स में भी करना होता है, जहां भी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती है लॉ के पेपर्स में, आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज सेम एज सेक्शन 420 ऑफ IPC. Let us now move on to section 468 of IPC, which is also section 336 subsection 3 of भारतीय न्याय संहिता, जिसमें फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग की बात की गई है, ठीक है। whoever commits forgery, फॉर्जरी का बेसिकली मतलब हो गया फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है, या कोई फॉल्स सिग्नेचर करना, ठीक है। whoever commits forgery, तो फॉर्जरी के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। intending that the document, ये 3 गलती से आ गया, इसको स्किप करो। intending that the document or electronic record forged shall be used, तो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है जो फॉर्ज्ड है, फॉर्ज्ड मतलब ओरिजिनल नहीं है, उसमें कुछ छेड़खानी की गई है। shall be used for the purpose of cheating, for the purpose of cheating। अब क्या है यहाँ पे चीटिंग के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। चीटिंग के कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे सेक्शन 415 में डिस्कस किया था, फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, और उसका पर्पस क्या होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी,
or intentionally inducing the person to do something or omit from doing something which he or she would not have done so, right? ये सारे के सारे, and there is harm to body, mind, reputation or property, or likelihood of harm to such and such, right? ये सारी चीजें आपको यहाँ सेक्शन 468 में होनी चाहिए, प्लस फॉर्जरी होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स फॉल्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में कुछ छेड़खानी की जानी चाहिए, और उसका पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, ठीक है? जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आपने एक फॉर्ज डिग्री बनाई, ठीक है? तो आपने क्या किया? फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग। इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है किसी का। चीटिंग में नुकसान होना जरूरी है, राइट? चीटिंग में इंजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजरी किसको हो रही है? उस इंसान को हो रही है जिसकी सीट आपको मिल रही है, राइट? सेम चीज भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 336 सबसेक्शन 3 में भी दे रखा है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे बेसिकली बात की जाती है पुलिस रिपोर्ट की, जिसको हम आम भाषा में चार्जशीट भी बोलते हैं। अब जरा मैं आपको पुलिस रिपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहता हूं, ताकि हम सेक्शन 173 का सबसेक्शन 8 समझ सके, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बारे में बात करता है। ये जो मैंने अभी टर्म्स बोले हैं, ये आपने सीरियल्स में, मूवीज में बहुत सुना होगा। चार्जशीट फाइल हो गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, राइट? क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे, बट ये एक्चुअली होते क्या है, इसको समझते हैं। पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है, पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉ में, पूरे के पूरे सीआरपीसी में चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट जैसा टर्म कहीं भी यूज नहीं किया गया है। दिस इज अ colloquial language, colloquial word of police report. Police report is the term which has been used in the CRPC, right? पुलिस रिपोर्ट कब फाइल होती है? एफआईआर या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल होने के बाद, एनसीआर जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इट हैज टू एंड इन अ पुलिस रिपोर्ट, राइट? ना पुलिस रिपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पुलिस रिपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज चार्जशीट, जिसको हम पॉजिटिव रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है? इसको पॉजिटिव रिपोर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें पुलिस कह रही है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट यस सच एंड सच पर्सन आर लायबल फॉर सच एंड सच ऑफेंस, दे हैव बीन चार्ज्ड अंडर सच एंड सच सेक्शंस। और दूसरा होता है क्लोजर रिपोर्ट, जिसको हम नेगेटिव रिपोर्ट भी बोलते हैं, बिकॉज यहां पे कंक्लूजन क्या है? यहां पे द investigating agency has concluded that no offense has been committed and therefore we are submitting a closure report, we are closing this case. So इसीलिए मैं कह रहा हूं that once an FIR, once the criminal system is initiated by filing of an FIR or an NCR, non-cognizable report, right, it has to end in a police report. It has to end in a police report. And therefore you cannot always file a positive report, therefore negative report का concept भी आया, ठीक है? अब क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाने के बाद बहुत बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को ऐसा लगता है, वो सुओ मोटो भी हो सकता है, कोर्ट को वो सुओ मोटो भी हो सकता है, या फिर कोई जो पार्टीज हैं, जो रिलेटेड पार्टीज हैं केस में, ठीक है, वो भी कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है? ये एप्लीकेशन बेसिकली क्या कहता है? दैट अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट दैट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 subsection 2. So police report is filed under section 173 subsection 2, right? Now अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहले हम एक बार 173 सबसेक्शन 8 को पढ़ते हैं। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation. To preclude further investigation का क्या मतलब हो गया? मतलब कोई भी nothing in this section, मतलब 173 जो सेक्शन दे रखा है, इसमें जस्ट बिकॉज पुलिस रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट की तरफ फाइल हो गई है, इट विल नॉट स्टॉप द पुलिस फ्रॉम फाइलिंग फॉर कंडक्टिंग अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
तो पुलिस खुद भी कर सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कोई एप्लीकेंट फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, या फिर कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है मैजिस्ट्रेट जो है सो, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2, मतलब पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे फाइल नहीं बोलते, हम बोलते हैं दैट द पुलिस रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence. So obtaining of further evidence, whether of oral or documentary nature, has to be found in further investigation. Then he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed. बात आई समझ में? ये वाला पोर्शन हमारे लिए अभी काम का नहीं है, इसलिए अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब मैं सीआरपीसी का लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूं जितना हमारे प्रेजेंटली केस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपने एक चीज और देखा होगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट की जो मैं बात कर रहा हूं बार बार, क्या कहीं भी इस सेक्शन में सप्लीमेंट्री चार्जशीट टर्म यूज किया गया है? द आंसर इज नो, राइट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट टर्म यूज किया ही नहीं गया है। तो ये वर्ड कहां से आए? अगेन इट इज अ कोलोकियल टर्म, ये हमने बना लिया है, इट्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज इसको नाम दिया गया है फर्दर रिपोर्ट का, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो, राइट। सॉरी, आप ये देखो, अगर इसको नाम दिया गया है फर्दर रिपोर्ट का, राइट। पुलिस रिपोर्ट है तो फर्दर रिपोर्ट है, मेक सेंस, लॉजिकल है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक फर्दर एविडेंस आना चाहिए, तभी आप एक फर्दर रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। अगर जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसके बेसिस पे आप फर्दर चार्जेस नहीं ऐड कर सकते सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, ठीक है। ये चीज जजमेंट में भी डिस्कस की गई, यही सेम एग्जैक्ट चीज जजमेंट में भी ये बात बोली गई है कि आपने चार्जशीट फाइल कर दी, अब उसी चार्जशीट आपने जिस एविडेंसेस पे फाइल की है तो आपने 2 सेक्शंस लगाए, उसके बाद आपने क्या किया? आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मूव की एप्लीकेंट ने, तो पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और पुलिस ने सेम एविडेंसेस के बेसिस पे एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जिसमें फर्दर सेक्शंस ऐड कर दिए गए, राइट। सो दिस इज नॉट अलाउड, ये इस केस में भी डिस्कस किया गया। Now let us move on to the last section which we have to study for this case, that is section 482 of CRPC, saving of inherent powers of the High Court. This is corresponding to section 528 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Acha, also section 173 is now section 193 subsection 9 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, ठीक है। 193(9) is actually ये subsection 8 था ना, तो इसीलिए 193(9) है, otherwise 173 is now 193 and 482 is now 528 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। इसमें भी सेम चीजें लिखी गई है। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, दिस इज द फर्स्ट वन, और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, राइट, दिस इज द सेकेंड वन, or otherwise to secure the ends of justice, ठीक है। इन 3 पर्पसेस के लिए सेक्शन 482 में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यूजुअली इसको जो फाइल किया जाता है वो किया जाता है क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, या फिर क्वॉशिंग ऑफ क्रिमिनल केस, चार्जशीट, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। सारी चीजें कवर्ड होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर जो है वो की जाती है जब ये समझ में आता है कोर्ट को कि केस फ्रिविलस है, जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो फ्रिविलस इन नेचर है, राइट। तो वैसे में कोर्ट क्या करता है? एफआईआर या चार्जशीट या ट्रायल जो होता है उसको क्वॉश कर देता है, राइट। सेक्शन 482 कैन बी an application under 482 can be moved at any stage of the inquiry, trial, investigation, whatever, at any stage it can be moved, ठीक है। ये भी इसने कोर्ट में इस केस में बात की है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर की जो पावर है इट हैज टू बी यूज्ड जुडिशियसली। आपको प्रिमा फेसी बस जो दिख रहा है उसके बेसिस पे ही सिर्फ नहीं करना है,
आपको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी है, आपको केस के मेरिट्स में भी घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल के केस में 7 to 8 पॉइंटर्स का गाइडलाइंस इशू किया गया था, ठीक है। 482 सीआरपीसी जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिटेल में ये डिस्कस करेंगे, मैं भी बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको साफ दिख रहा है कि एफआईआर आपके पास, आपके सामने चार्जशीट या एफआईआर है, उसको पढ़ के आपको साफ समझ में आ रहा है, अरे ये तो ऐसा लग रहा है फैब्रिकेटेड फैक्ट्स है, क्योंकि कभी जो कंप्लेनेंट है कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, एक ही एफआईआर के अंदर फैक्ट चेंज होते जा रहे हैं, या फिर आपको एफआईआर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उभर ही नहीं रहा है, इसमें से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ ही नहीं हो। तो इस तरह के सिचुएशंस में आप क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर या क्वेश्चनिंग ऑफ चार्जशीट करते हो, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द जजमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द जजमेंट, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। So there was a marital dispute between the appellant number 1, which is the wife, and the respondent number 2, which is the husband. Right? The wife had filed an FIR under section 368, 498A, and 506, read with section 34, claiming that she was coerced and tortured by the husband. तो basically क्या हुआ था, इन दोनों का बच्चा भी हो गया था, ठीक है, एक बेटा था, माइनर बच्चा। हस्बैंड ने वाइफ को टॉर्चर किया, कोवर्स किया, ठीक है, काफी बैडली ट्रीट किया, एंड अल्टीमेटली द हस्बैंड लेफ्ट द वाइफ, राइट। बीच में ये लोग बाहर भी रहने गए थे लंदन में, फिर वापस आ गए यहाँ पे, फिर हस्बैंड ने इसको यहीं छोड़ दिया, हस्बैंड कहीं और चला गया, ऐसा ऐसा कुछ इसमें केस में हुआ था। तो वाइफ ने फाइनली एक केस फाइल कर दिया। जैसे वाइफ ने फाइल किया वैसे हस्बैंड ने एक एफआईआर फाइल कर दी 420, 468 और 471 के अंडर, रेडवुड सेक्शन 34, जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि इनका कोई एजेंट है और इनकी जो वाइफ है, इन दोनों ने मिलके इसके माइनर बच्चे के पासपोर्ट पे फादर के सिग्नेचर फॉर्ज किए हैं, ठीक है। देन द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, और उन्होंने एक चार्जशीट फाइल की हस्बैंड के एफआईआर के बेसिस पे, और वाइफ को चार्ज किया फॉर सेक्शन 468 एंड 471, विच इज बेसिकली फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, ठीक है, एंड फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉर्जरी फॉर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर हस्बैंड वाज नॉट सेटिस्फाइड कि इतना छोटी चार्जशीट है, इतने कम चार्जेस हैं, तो हस्बैंड ने सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन मूव किया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे हुई तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एविडेंसेस, नो न्यू एविडेंसेस वर फाउंड, no new oral or documentary evidences were found. On the same investigation, the investigating agency, the police, filed a supplementary charge sheet, and now they have given the charges 468 और 471 तो पहले से थे, they have given 420, 120B, 201, read with section 34 now. ये कहाँ से उड़ के आ गया किसी को नहीं पता, right? Then simultaneously what happened, wife filed an application under 482 before the High Court for quashing of the charge sheet, but the High Court did not entertain it and dismissed the application. Now ट्रायल कोर्ट में फिर उनसे ट्रायल कोर्ट में ट्राई किया वाइफ ने कि मेरा डिस्चार्ज हो जाए, राइट, शी शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द एलिगेशंस, बट ट्रायल कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया दैट नो वी विल नॉट डू इट, वी विल कंडक्ट अ ट्रायल टू अंडरस्टैंड इट, इफ यू आर नॉट गिल्टी द ट्रायल विल स्पीक सो, राइट। तो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील फाइल की, और 3 इश्यूज फ्रेम होते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 3 इश्यूज फ्रेम होते हैं। पहला, whether the actions of the appellants prima facie constitute the offense of cheating under 420 of IPC. दूसरा, whether there has been a prima facie case made out for forgery under sections 468 and 471 of IPC. एंड तीसरा, पासपोर्ट्स एक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 12B के अंदर वायलेशन है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो अगर आप, तो इशू नंबर 1 डिस्कस करते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले पैरा 11 में 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ चीटिंग डिस्कस किए हैं 420 में। डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, fraudulently or dishonestly inducing that person to deliver any property to any person, ठीक है। There must be men's or dishonest intention of the accused at the time of making the inducement, and there's some damage or injury must be caused to the victim. यहाँ पे so called victim जो है वो husband है, ठीक है। Now, for the offense of cheating, fraudulent, dishonest intention must exist from the inception when the promise or representation was made. Now, this is something academically आपको जानना चाहिए, ठीक है।
Now it is well known that every deceitful act is not. Now this paragraph is very interesting. First I will read it out to you and then I will explain it to you. It is well known that every deceitful act is not unlawful, just as not every unlawful act is deceitful. इससे क्या समझ में आता है? एक वेन डायग्राम बनाते हैं, चलो हाँ यहाँ पे बनाते हैं. ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है. ये हो गया डिसीटफुल एक्ट और ये हो गया अनलॉफुल एक्ट. अब ये बोल रहे हैं नॉट एवरी अनलॉफुल एक्ट, मतलब नॉट एवरी अनलॉफुल एक्ट इज डिसीटफुल. तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया ऐसा एक्ट जो अनलॉफुल है बट डिसीटफुल नहीं है, राइट. फिर ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया कौन सा? ये हो गया an act which is deceitful in nature but is not unlawful, right. ये हो गया. तो इन्होंने ये सेंटेंस से ये बताया. नाउ दे आर सेइंग दैट एन एक्ट विच इज बोथ डिसीटफुल एंड अनलॉफुल, ये जो बीच वाला पार्ट है, that is something which is covered under section 420 of IPC. Some acts may be termed both as unlawful as well as deceitful, and such acts alone will fall within the purview of section 420 of IPC. This is given in para 12 of the judgment. आई होप ये आपको बात समझ में. अब इसी के बेसिस पे ये लोग आगे प्रूव करेंगे ये जजेस कि जो यहाँ पे हस्बैंड क्लेम किया है कि ये एक्ट डिसीटफुल है, डिसीटफुल होना जरूरी है यहाँ पे. अगर डिसीटफुल नहीं है, ठीक है, सिर्फ अनलॉफुल है, तो 420 आईपीसी के अंडर में ऑफेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेंशन ही मिसिंग है, राइट. डिसीटफुल इंटेंशन है, एक मेंसरिया है, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, एक मेंसरिया है, एक तरीके का. अगर वो मिसिंग है तो चीटिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है. यही चीज बात की गई है. सो इसके बाद हमने डिसेप्शन की बात कर ली, फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली की बात कर ली, मेंसरिया की बात की. तीनों के तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. सम डैमेज और इंजरी हैज बीन कॉज्ड टू द विक्टिम. अच्छा, इसमें एक डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन. इसकी जो बात की गई है, इसके लिए आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन की बात की गई है. In movable property is basically any corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. Negative definition है basically. और immovable property exactly इसका उल्टा है, means land, benefits arising out of land and things attached or permanently fastened to the earth. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. आई थिंक ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन दे रखा है. नाउ द कोर्ट इज having fully addressed the contours of the offense of cheating. They've discussed all the elements. Now what they're going to appreciate, now they're going to discuss whether the allegations made by respondent number 2 are sufficient to prima facie establish that the appellants have deceived respondent number 2, that is the husband. Her respondent number 2 was induced with dishonest intention, मतलब dishonest intention की बात की जा रही है अब हमें मेंसरिया की. Third, such inducement was for the delivery of any property or valuable security. ठीक है, delivery of property of course एक एलिमेंट है. and as a result the husband has suffered some damage, इंजरी भी प्रूव करनी है. ये सारे के सारे अब डिस्कस करेंगे हम आगे. देखो अब यहाँ पे आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स मिसिंग है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स मिसिंग है. So basically the crux of husband's allegation is that the appellant purportedly forged his signature on the passport application submitted to the to obtain the minor child's passport. Now, assuming the allegation to be accurate, it would be undoubtedly constitute an unlawful act. However, as set out earlier, it is crucial to underscore that not every unlawful act automatically qualifies as deceitful. In the peculiar set of facts, the wife seems to have breached the notion of marital trust and unauthorizedly projected husband's consent in obtaining the passport for their minor child. However, it remains a question as to how such an act should be labeled as deceitful. What she has done might be unlawful, might be immoral, but it's not deceitful, right? Because the court is saying that whatever she has done, she did not have a dishonest intention. What kind of dishonest intention did she have? क्या करना चाह रही थी उससे? Dishonest intention किस चीज का होना चाहिए?
to deliver any property or to cause any, and by delivery of that property some injury must be caused to the husband. क्या यहाँ पे कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुई है? आगे यही डिस्कस किया गया, कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंजरी भी नहीं है. Furthermore, the grant of, ये वाली लाइन पढ़ो, पैरा 16. Furthermore, the grant of passport to the minor child did not confer any benefit upon the wife, nor did it result in any loss to the respondent number 2, that is the husband. तो लॉस भी नहीं है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं है, राइट. हाउ डज द कोर्ट, ये बार बार पूछ रहा है, हाउ डज द एक्ट ऑफ फॉर्जिंग सिग्नेचर्स ऑन द पासपोर्ट एप्लीकेशन एम्ड एट ऑब्टेनिंग द माइनर चाइल्ड्स पासपोर्ट amount to inducing respondent number 2 to relinquish any property or valuable security. relinquish any property का मतलब वही हो गया, delivery of any property or valuable security. कुछ भी नहीं है ऐसा. इसीलिए कोर्ट इस कंक्लूजन पे बेसिकली आता है कि यहाँ पे कोई भी सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी का एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. ठीक है, अब आते हैं इशू नंबर 2 पे. ठीक है, मैं ये पीडीएफ जो है, ये एनोटेटेड पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे. ठीक है, कमिंग बैक टू इशू नंबर 2. इशू नंबर 2 क्या है? फॉर्जरी, सेक्शन 468 ऑफ आईपीसी. अब इसके एलिमेंट्स क्या है? देयर मस्ट बी सम फैब्रिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इट मस्ट बी डन विद द इंटेंशन टू फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग. फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट चीटिंग के लिए होना चाहिए. अब कोर्ट ने एक्चुअली बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया. जब चीटिंग के एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वहां पे इंटेंशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वहां पे कोई लॉस या इंजरी नहीं हो रहा, या फिर कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा वाइफ को, ये कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो कंसिडरिंग द प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन itself could not be established against the appellant, that is the wife, the offense of forgery too has no legs to stand. तो फॉर्जरी अपने आप ही यहां से गायब हो गया. ठीक है, ये हो गया इशू नंबर 2 भी रिजॉल्व. अब इशू नंबर 3 की बात की जाए तो इशू नंबर 3 में एक्चुअली क्या है, सेक्शन 12 ऑफ पासपोर्ट एक्ट जो है ना, वो बेसिकली क्या बोलता है, that the accused knowingly furnish false information or suppress material information with the intent of obtaining a passport or travel document. ये है सेक्शन 12. ठीक है, यहां पे मान भी लो, कोर्ट बोल रहा है, मान भी लेते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो दे रखा है, द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस कैन बी टेकन ओनली एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. नो कंप्लेंट टू दैट इफेक्ट हैज बीन डिस्क्लोज अगेंस्ट द वाइफ. यहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, दैट इज पासपोर्ट अथॉरिटी जो है, उन्होंने कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके दायरे में घुसेगा ही नहीं. That's what they have said, and they have closed this matter. They have dismissed the appeal. They have not dismissed. They have accepted the appeal and they have discharged the wife from all the charges. They have quashed the charge sheet and they have also penalized a fine of somewhere around 1 lakh rupees or 2 lakh rupees on the husband. Right. Now, there are some interesting things that the trial court and the high court have missed while they dismissed the application of the wife. They dismissed the prayer of the wife to discharge her or to quash the FIR or the charge sheet before the high court, right? 3 things were overlooked. First thing, जो मैंने आपको कहा, 173 सबसेक्शन 8 में अगर आपको सप्लीमेंट्री चार्ज शीट फाइल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या कोई फर्दर एविडेंस बरामद हुए हैं कि नहीं. यहाँ पे कोई फर्दर एविडेंस नहीं मिला था, एंड देन ओनली यू कैन फॉरवर्ड इट टू द एज सप्लीमेंट्री चार्ज शीट. बट इन्होंने जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसी के बेसिस पे एक सप्लीमेंट्री चार्ज शीट फाइल कर दी और एडिशनल चार्जेस लगा दिए वाइफ के अगेंस्ट. सो दिस वाज ओवरलुक्ड बाय द ट्रायल कोर्ट. नेक्स्ट यू हैव the trial magistrate, while directing further investigation, overlooked the significant aspect that the offences imputed upon the appellants fall within the ambit of offences against property and offences relating to documents and property marks of IPC. All the offences delineated or illustrated under these 2 chapters predominantly pertain to commercial or property disputes, while the present is actually a marital dispute. मैरिटल डिस्प्यूट में इतने डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्जरी और पता नहीं क्या क्या चीटिंग जैसे ऑफेंसेस का चार्जेस लगाए जा रहे हैं
क्या ये ट्रायल कोर्ट को एक बार भी ऑकवर्ड या वियर्ड नहीं लगा? इनका रिलेशन यूजुअली इज, आई एम नॉट सेइंग द ट्रायल कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं है, but this is something very unusual happening, but still the trial court overlooked this, which is not acceptable, right? The third thing, the trial magistrate and the high court unfortunately failed to appreciate that the genesis of the present controversy lies in a marital dispute, right? तो इनकी टाइमिंग भी गड़बड़ है। जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको फैक्ट्स में दिखाए थे, फैक्ट्स का ये रहे फैक्ट्स में दिखाया था, वाइफ ने एक एफआईआर फाइल की 498 है, 368 है, 368 और 506 में, वैसे ही हस्बैंड ने फिर फाइल किया 420, 468 और 471 में। ठीक है, तो ये टाइमिंग थोड़ी ऑकवर्ड नहीं लग रही कि वाइफ ने जैसे फाइल किया वैसे ही हस्बैंड ने भी फाइल कर दिया? तो ये टाइमिंग काफी ऑकवर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने 482 के एप्लीकेशन में ये चीज इग्नोर कर दी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट ने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो कंक्लूजन बेसिकली क्या है? द अपील वाज अलाउड, द इम्प्यूग्ड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट वाज सेट असाइड एंड द FIR was dismissed, right? And the charge sheet was also dismissed, quashed, right? All criminal proceedings were quashed. So I hope आपको ये केस समझ में आ गया हो। यहाँ पे फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जैसे मैंने पिछले जजमेंट में कराया था, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वाला हमारा जो जजेस वाला केस था लेक्चर नंबर 2 में, राइट? वहां पे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे समझना। यहाँ पे फैक्ट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको यहाँ पे फोकस करना है। ये जो 420 है, 415 है, 468 है, 471 है, 173 है, 482 है सीआरपीसी, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन द फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट। ठीक है, हर जजमेंट में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे नहीं फोकस करना है। ठीक है, वो मेरा काम है बताना। आई एम मेकिंग योर जॉब इजियर। और जो जजमेंट्स की मैं वीडियोस नहीं बना पाता, बिकॉज एक एक जजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, मैं उन जजमेंट्स का एनोटेटेड पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो आई एम देयर फॉर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, ऑल माई व्यूअर्स, टू प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन keep yourself updated with all the legal news, all the changes and any amendments brought in, any major breakthrough in the criminal or in the legal justice system, right? And I also take quizzes. तो अभी ये वीडियो जैसे ही पोस्ट होगा within 2 hours आपको इसके ऊपर 5 to 7 questions का एक टेस्ट मिल जाएगा on my telegram channel, जो anonymous quiz है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। no one will be able to see your name, अनोनिमसली आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है इन पर्टिकुलर प्रोविजंस की। आंसर्स गलत होते हैं, रीविजिट द वीडियो, रीविजिट योर क्वेश्चंस, एंड देन इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can always DM me on my Instagram, that is law by Nilay Kumar, and you can always email me, that is nilaykumar.lawonet@gmail.com। आप टेलीग्राम पे भी लॉ बाय निलय कुमार सर्च करेंगे तो वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।